We'll start the webinar. Good morning, everyone, and a warm welcome to today's webinar. It's a pleasure to have you all with us. As a part of our ongoing monthly webinar series, we aim to share timely market insights and expert views to help our investors stay informed and ahead in the fast-changing market. Before we begin, we are delighted to share a proud milestone. In just 2 years, we have reached an AUM of rupees 200 crores as of yesterday. This achievement wouldn't have been possible without the unwavering support of our esteemed clients and well-wishers. Thank you for your continued trust in us. Global markets continue to be anything but predictable. As we navigate the second half of 2025, a new wave of themes, some familiar, some fresh, are shaping the investing landscape in complex and consequential ways. In an environment marked by volatility and shifting narratives, understanding the strategies of experienced fund managers becomes essential. Our focus today is on delivering structured, data-rich perspectives to help you stay ahead of the curve. We are delighted to have with us Mr. Sandeep Agarwal, co-founder and fund manager at Sovelo Investment Managers. He will be sharing his valuable insights and strategic roadmap for managing complexities of the current market landscape under the theme Tariff, Tesla, Jane, Inflation, and more. Joining him is Ms. Padmavati Udecha and Mr. Ariman Iyer, who heads research at Sovelo and brings valuable insights to the discussion. We'll cover the following topics today: Trump, tariff and trouble, Tesla, SEBI's crackdown, and inflation. If you have any questions during the session, please feel free to drop them in the chat box. We'll take them up in the Q&A segment. With that, I now hand it over to Mr. Sandeep Agarwal to take us through his views. Hi, good morning and thanks, Suchita. Good morning, everyone, and thanks for participating in our webinar, or that too on a Saturday morning. Really appreciate your efforts to do that. With me, I have two wonderful people more who will be co-presenting with me, as highlighted by Suchita, Ms. Padmavati Udecha, who heads our research, and Aryaman Iyer, who looks after the technology and parts of it. So I will just start with Padmavati, and then I will take over where, wherever it is required. So Padma, please start, and we will take over. Sure. Thanks, Sandeep. And thank you everyone for joining. So most of you would have, are well versed with our investment philosophy, but just for the benefit of people who are joining us for the first time today, I quickly want to just touch upon our, the basic fundamentals of our core investment philosophy. As we have always mentioned, in order to have a strong structure in place, you need a very strong foundation. तो हमारा ये जो फाउंडेशन है ये 5 पिलर्स पे बिल्ट है. ये जो 5 पिलर्स है वो है number 1 scale, number 2 returns, where we are focused on sustainable returns for the future, technology, businesses which always embed technology, and also in our research process how we are leveraging upon AI and other advances in the technology space. My colleague Aryaman is going to have he will be sharing with you in detail how we are doing it. Second, and next we have leadership. So we obviously want to focus on companies which have a good leadership in place. And then finally, governance. If a company or if an entity is not in a good standing from a corporate governance perspective, then we will shy away from investing in those companies, no matter what kind of lucrative opportunities they provide us. Also, in terms of our achievements, we very proudly are sharing that it has been 4 months of being consistently ranked among the top 10 portfolios in the peer group by PMS AIF World. And this has been possible because of the process-driven approach, research-driven approach, and our discipline and the trust that has been given to us by all of you, that is our client base. So now we would like to begin our webinar, wherein
we want to share some of the key highlights ever since our last webinar, both from a financial market standpoint of view and also in terms of some of the other interesting developments that are happening across the world. So, talking about market, we have seen that how Indian markets, after having a very stellar run in FY20, in the early part of 2024, we saw that in second half markets did correct. There was uncertainty with around the US tariffs, and then there was some kind of slowdown visible in earnings growth. So markets corrected in early, like the first quarter of CY25, markets did recover, but then ever since that, we have kind of plateaued at elevated or record high levels. So if you look at the performance in the first 6 months of CY25, broadly, it's been tepid, like, Nifty at the Nifty level, it's been around 6%. Mid cap, small cap indices are muted, but there's a lot of action in the sector specific space. So after RBI's record high rate cut, like, front loading of the rate cuts, we have seen that financial services, banks, etc. have done phenomenally well. US dollar weakness and also some kind of recovery that has been seen in international metal prices is leading to the metal sector doing quite well. When we talk about the global indices, we have seen that India's returns, that is, we are more or less similar to how the US markets are performing. Some of the developed markets like Germany and some of the other emerging markets like Hong Kong or Brazil, they have done better than us. But we also need to recollect that they had a very sharp fall in 2024, which was much more than Indian markets. So it's more like a base effect. Some of them are still not close to record highs, but today Indian markets are trading very close to their record high levels. Now, if I just talk about the important macro indicators in June, so what is happening at the economy level? So we are seeing that June as a month, we did see some kind of a slowdown in consumption indicators, whether it is your automobile sales or something at the diesel or petrol consumption level, GST collection growth, there is some kind of a softness that has been seen, but some of the other indicators which indicate more about manufacturing, etc., that is holding up quite well. Now, what implication this has for a long-term perspective, for a long-term investment strategy, we'll be discussing that in the later part of our presentation. Also, if you look at the international macro setup or the international scenario, we are seeing that the US dollar has seen a very sharp fall. And this is translating into a huge spike in cryptocurrency as well as other commodities. But then a question might arise that historically, whenever the US dollar has fallen sharply or has weakened, we do see that all emerging markets, including India, we tend to see strong rallies. So why is this not really happening right now? So if you see last year, like ever since October when markets started falling, there were huge FII outflows. Now that outflow has kind of stopped, and in months of April, May, etc., we did see FIIs coming back also, but then the recovery in these inflows has been pretty muted and it has further fizzled out. So what is really weighing on FII inflows? So there are multiple factors, but one of the important factors is that if you look at CY25 performance itself, US markets return is exactly the same as what Indian markets have given. So इससे क्या हो जाता है कि FIIs को कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि वो लोग अपने कंट्री के बाहर जाके सारा रिस्क ले, बिकॉज एक्सचेंज रिस्क लेना पड़ता है, कंट्री रिस्क लेना पड़ता है, बहुत कुछ लेना पड़ता है, और वो सारा रिस्क लेने के बाद भी अगर अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है, अपने होम कंट्री से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर उनके पास एक इंसेंटिव नहीं है. सो इसीलिए even though when the US dollar is weakening, but because the returns of Indian markets are broadly in line with US markets, we are seeing that FII flows have still not come back to India with the same gush at, like historically how they were there. As we were talking, that US weakness has been phenomenally well for commodities. तो जैसे कि आपने सभी ने सुना है कि गोल्ड प्राइसेस दे आर ओवर द रूफ. इंटरनेशनल मार्केट्स में 3500 का $3500 पर आउंस का लेवल पहुंच गए थे गोल्ड प्राइसेस. इंडिया में भी 1 लाख के ऊपर चला गया था. तो ये गोल्डन फ्रेंजी जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले, US डॉलर वीकनेस, सेफ हेवन बाइंग, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है, इन्होंने बहुत भर के गोल्ड खरीदा है. तो अगर आप देखेंगे
लास्ट 3 years, दैट इज कैलेंडर ईयर 22, 23, 24, इसमें लगभग 1000 टन के ऊपर गोल्ड खरीदा गया है। और ये 3 साल का अगर आप परचेजेस देखोगे तो ये पिछले 22 साल से भी ज्यादा हो जाता है, राइट? सो इतना I think Padma has undergone some issue with the network. But so I will continue from there. I think हेलो, she's- am I audible? Yeah, please. Yeah, sorry for that. My Zoom got disconnected, but yeah. So as I was saying कि जो लास्ट 3 साल में जो गोल्ड का परचेज रहा है वो पिछले 22 साल में जितना सेंट्रल बैंक ने खरीदा था उससे भी ज्यादा है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज लीडिंग टू दिस फिनोमिनल सर्ज दैट वी आर सीइंग इन गोल्ड प्राइसेस। अब हिस्टोरिकली क्या होता था कि जब गोल्ड में तेजी आती थी या जब गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते थे तो सिल्वर भी साथ में ऊपर जाता था। अब साथ में जब हम बोलते हैं तो डजंट मीन कि एग्जैक्टली सेम डे, कभी कभी उसमें लैग आ जाता है 2-3 क्वार्टर्स का, बट यूजुअली गोल्ड और सिल्वर दोनों साथ में चलते हैं। अब सिल्वर जो कमोडिटी है, दिस इज अ वेरी यूनिक कमोडिटी। इट इज, आई मीन, एक सेफ हेवन या ज्वेलरी भी यूज होता है इसका, इसका इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। तो इसीलिए जब सिल्वर के प्राइसेस है, ये मतलब गोल्ड से भी थोड़ा कोरिलेटेड है और दूसरा बिजनेस साइकिल से भी कोरिलेटेड हो जाता है। बट फिर भी एक हिस्टोरिकली अगर आप जैसे ये चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म गोल्ड सिल्वर का अगर हम रेशियो निकाले तो लगभग 60-65 के आसपास उसका एक लॉन्ग टर्म एवरेज है। फिलहाल जब गोल्ड प्राइसेस काफी ऊपर चले गए थे तो ये रेशियो बहुत ही बढ़ के 100 पहुंच गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हिस्टोरिकल एक मतलब हिस्टोरिकल जो ट्रेंड चल रही थी वो ब्रेक हो गई थी। सो इसीलिए अभी हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट तो है नहीं गोल्ड सिल्वर में, बट हमारा ये मानना था कि वी शुड डेफिनेटली कम क्लोज टू द मीन लेवल। सो ये जो रेशियो है गोल्ड टू सिल्वर दिस शुड करेक्ट। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक है कि सिल्वर प्राइसेस कैच अप टू द ह्यूज रैली दैट वी आर सीइंग इन द गोल्ड प्राइसेस, या गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। जैसे लास्ट वीक सिटी बैंक जो कि एक बहुत बड़ी बैंक है, Padma, your voice is correction. Hello, sorry. between your voice was gone. Can you just repeat the last 1 minute? Oh, okay. Just 1 second, sorry. Is it better now? Am I clearly audible? Yeah. Okay, so I'll just repeat. So central bank gold buying is leading to gold prices being driven up. अब हिस्टोरिकली क्या होता था कि जब भी गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते थे, वी हैव सीन दैट विद द लैग इवन सिल्वर प्राइसेस गो अप। अब हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स नहीं है तो हम गोल्ड या सिल्वर का प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेटली नहीं क्लेम करेंगे कि हम कर सकते हैं। बट अगर आप एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देखिए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो यूजुअली 60-65 के आसपास चलता है। और अभी वो जब गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े तो ये 100 तक पहुंच गया था। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये हिस्टोरिकल मीन तक फिर से मीन रिवर्ट कर जाए। तो अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके सिल्वर प्राइसेस कैचअप करके ऊपर आ जाए या गोल्ड में थोड़ा बहुत करेक्शन देखा जा सकता है। तो लास्ट वीक सिटी बैंक जो कि एक बहुत बड़ी बैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें कि वो लोग बता रहे थे कि अभी नेक्स्ट 1 ईयर हम लोग देखेंगे कि सिल्वर काफी ऊपर जाएगा और गोल्ड में उनके अंदाज से अराउंड 20 से 25% करेक्शन आ सकता है। Having said that, like again, I want to reiterate, we are no experts, we are not claiming to accurately predict anything, we are just telling कि historically क्या हुआ है, because इस पे हमें काफी क्वेश्चंस आते हैं कि गोल्ड और सिल्वर पे आपका क्या व्यू है। इसके अलावा हमने देखा कि लास्ट 1 महीने में टैरिफ्स के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन यूएस में एक बिग ब्यूटीफुल एक्ट करके एक एक्ट है जो कि पास हुआ है। इसको बिग ब्यूटीफुल बिल बोला जा रहा था लेकिन अब ये लॉ, सो इट हैज बिकम एन एक्ट नाउ। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, ये लोग इन्होंने कुछ टैक्स कट्स दिए हैं कॉर्पोरेट्स को, यूएस सिटीजन्स को, तो इसको पूरा परमानेंट बना दिया है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा दिए हैं। लेकिन अब अगर आपको ये रेवेन्यू मतलब आप काट रहे हो, टैक्स कट्स कर रहे हो,
स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली साथ में हमें कुछ स्पेंडिंग पे भी कंट्रोल लाना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नहीं तो डेफिसिट में चले जाओगे. So for this reason, they have also introduced reduction in their social program spending. जैसे कि उनका जो मेडिकेड, जैसे आप सब जानते होंगे कि यूएस में मेडिकेड इज अ वेरी बिग थिंग, लाइक द यूएस गवर्नमेंट दे टेक केयर ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द सिटीजन्स. तो इसमें ऑलमोस्ट 12% रिडक्शन पास हुआ है. तो इससे क्या होता है कि अगर आप ओवरऑल इफेक्ट देखो ये बिल का या ये एक्ट का, सॉरी, तो इससे लगभग 2034 तक, मतलब नेक्स्ट ऑलमोस्ट 9 years में $3.3 trillion will get added to the US national debt. अब इससे क्या होता है कि यूएस का डेट, अगर आप जानते हो, जब कोविड में जब यूएस गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया था ताकि कोविड के कारण जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल हो जाए या बहुत ही मिनिमाइज हो जाए, तो उस समय यूएस डेट हैड रिजन टू पोस्ट वर्ल्ड वॉर II हाई लेवल्स, और उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा डीलेवरेजिंग हो नहीं पाई है. अब इस बिल के साथ अगले 9 साल में और भी ज्यादा डेट बढ़ने वाला है. तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से कि हम देख रहे हैं दैट US dollar is on a weakening bias. But the most important thing here is कि अगर ये debt को delever करना है, मतलब the US government wants to ensure that their debt, they are able to continuously pay back the debt, it is very, very important that they get support from the US central bank, which is the Federal Reserve. तो अगर Federal Reserve अपना इंटरेस्ट रेट्स काटेगा, जो कि अभी काफी एलिवेटेड 4-5% पे चल रहा है काफी टाइम से, इफ द फेडरल रिजर्व सेज government, or and from that perspective it can become bit sustainable. So that's broadly it, like from my side. I think Sandeep, you can like take over from here. Yeah, hi. Sorry. So thanks Padma for the beautiful explanation of the things which we are seeing now. अभी टैरिफ का प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का खत्म नहीं हुआ है, वो चालू ही है, और हमको जब भी लगता है कि अभी खत्म हो गया तभी वापस आ जाता है. तो अभी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं वैसे 150-200 कंट्री को प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, जिसमें किसी को बोला है कि आपको 10% लगाएंगे, किसी को बोला है कि 15% लगाएंगे, किसी को बोला है 20% लगाएंगे. और जो बड़ी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू हिम विच आर नॉट बिग फॉर कंपेयर टू अमेरिका, बट एटलीस्ट विच ही थिंक्स इज रिलेवेंट या जिसको थोड़ा बहुत वैल्यू देते हैं, उनका वो इंडिविजुअली नेगोशिएट करके कुछ रिलीज करने वाला है. तो इंडिया का बहुत दिन से चल ही रहा है. टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता कि हमको कोई बहुत बड़ा इसमें सक्सेस मिलने वाला है, बट मुझे ये भी पता है, और मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, कि हमें इसमें कुछ सक्सेस ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा बहुत छोटा ही ट्रेड गुड्स का जो है ये प्राइमरली ये टैरिफ गुड्स पे है, सर्विसेज पे नहीं है. और हम लोगों का गुड्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा है ही नहीं, और हमारा इतना बड़ा गुड्स का लेन देन नहीं होता है अमेरिका के साथ कि हमको बहुत बड़ा फर्क पड़े. बट स्टिल आई बिलीव कि अपने जो पीयूष गोयल साहब हैं और भी जो मिनिस्टर्स हैं, they are stationed there and they are trying to get best out of it. And I believe that we will be similar to what Indonesia has got, maybe 18-19%. मुझे नहीं लगता कि हमको 10% मिलने वाला है, वो तो नहीं होने वाला है. बिकॉज हमने भी उनकी बहुत सारी जगह पे बहुत टैरिफ लगा रखी है. अगर आप उनकी कार्स देखो, उनके दूसरे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वाइन आती है, जो शैम्पेन आती है, विस्की आती है, वो सब में बहुत ज़्यादा हमने लगा रखा है रेट्स. तो वो हमको ऐसा कोई 10% देने वाले नहीं है. लेकिन वो हमें कुछ भी दे ना दे, आई डोंट थिंक इट विल इम्पैक्ट मच. दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, एंड आई विल शो यू द डेटा ऑल्सो. दिस द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड नाउ. यू एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट इज अ डिफरेंट थिंग. पर ट्रंप को लगता है कि वर्ल्ड इज नॉट इंटरलिंक्ड. सो आप यहाँ एक तरफ टैरिफ बढ़ाओगे, वो दूसरे सोर्सेज से वहां पहुंच जाएगा, बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड देयर आर बिजनेसमैन ऑलवेज फाइंड्स आउट अ वे. तो आज भी अगर देखोगे आप, चाइना का जो लास्ट मंथ का भी डेटा है, चाइना का एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है. और चाइना पहले भी एक्सपोर्ट, वो गुड्स जो यूएस में कंज्यूम हो रहे थे वो यूएस ही पहुंच रहे हैं. बस अभी उनके रूट्स और चेंज हो गए. जो रूट्स चाइना को पता थे, वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना जहां जहां से घुमा के भेजती थी, सब बंद कर दिए, लेकिन दूसरे रूट्स आ गए हैं. इनफैक्ट अभी मुझे ऐसा सुनने में आया कि इंडिया से भी रूट हो रहा है यूएस बहुत सारे गुड्स चाइना के. तो वो होते रहने वाला है. ट्रेडर्स आर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो उसकी निकाल लेंगे. बट द थिंग विच इज हैपनिंग इज दैट there is a very famous quote that whenever there is an uncertain environment you cannot calculate the financial impact of that. और वो शेयर मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है, इक्विटी मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं होता है. एंड
आज के दिन हम उसी सिचुएशन में, इसलिए मुझे लगता है कि एक बार ये टैरिफ का जो भी एक फाइनल डिसीजन होता है, जिस दिन वो आ जाएगा, आई थिंक हम लोगों को बहुत ही अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा, हमारे मार्केट्स को एक डायरेक्शन मिलेगा एंड चीजें यहाँ से बहुत इंप्रूव होगी. दैट इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज जो भी बाकी चीजें होनी थी हमारे लिए अच्छा करने के लिए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डॉलर शुड वीकन, एंड डॉलर वीकन हुआ है. उसका बेनिफिट कुछ कुछ इक्विटी मार्केट्स को कहीं कहीं मिला है, पर डॉलर वीकन होने के बाद भी जो सेंट्रल बैंक्स है प्राइमरली, उन लोगों ने एक तरह का इंडिकेशन दिया कि अब हम यहाँ से कम कर देंगे कट करना. जैसे हमारे गवर्नमेंट का भी आप देखोगे तो अकोमोडेटिव स्टैंस को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, आरबीआई गवर्नर ने. तो मुझे लगता है कि उसके कारण भी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है, आप देखोगे वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है, उनमें कोई कंप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है. आज भी हम 6.25 पे हैं. इसका मतलब ये है कि पीपल आर स्टिल वरीड एंड दे आर नॉट taking this numbers which are coming or the dollar weakening anything much seriously, because dollar weaken होता है तो emerging markets definitely rate cut करता है, because उनके पास एक वेपन होता है कि उनकी करेंसी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा जो उनको बचाना होता है. I think we are in that phase where there is uncertainty, and because of uncertainty things are not taking any direction. So we are right now in a stable, as Padma mentioned, we are in a plateau kind of situation, and I think that will remain till this deal is signed. Padma, you move to next slide please. ये आप सबको मालूम है, और हमारे मार्केट में काफी डिस्टरबेंस भी रहा है, सब कुछ रहा है. ये जेन स्ट्रीट का जो मैटर हुआ है अभी, मैं आप लोगों ने सबने बहुत पढ़ा है, बट मैं बहुत शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि the amount of money which SEBI has asked, that has been paid, and that is 5,000 crore approximately as a they have already deposited that, and I think sooner or later the trade will start. I have very limited point from our view. हमारा मार्केट इलिक्विड है, इसका एक एडवांटेज किसी ने लिया है. अदरवाइज आई थिंक व्हेन दे गो टू द कोर्ट और समथिंग, इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई अनलेस देयर इज सम रॉन्ग डूइंग व्हिच वी आर नॉट अवेयर कि ये हम लोग ये स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं और ये उसके लिए आप हमको कोई भी तरह से रोक सकते हो. सो आई थिंक द स्टेक्स आर वेरी हाई, एंड इसके कारण वॉल्यूम्स भी बहुत होते हैं. कुछ कुछ ब्रोकर्स, जैसे सबसे बड़ा जो इसका और हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है नुआमा, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि उनके 10 से 12% का बिजनेस जेन स्ट्रीट से आता था. तो देयर इज विल बी सम इम्पैक्ट इन द वॉल्यूम्स एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन सम ऑफ द स्टॉक्स. But I am very sure that you can't stop this practice, because this is everywhere in the world, and sooner or later government will come with some SEBI will come with some constraints or some restrictions or some conditions of how you can do it. But I don't think they can logically stop this, because this is a strategy. If your market has an inherent weakness of liquidity, it is not the investors problem or the hedge funds problem. So I think इसका solution आ जाएगा. As of now I think things have, जो negative impact होना था कुछ stocks पे वो हो चुका है. I don't see a big incremental impact from here. Next, Padma. So, Aryaman, you will take this over. So, this is on Tesla. Tesla ने अभी अपना नया फर्स्ट टाइम इंडिया में बीकेसी में शोरूम में अपना प्रोडक्ट दिखाया है. हालांकि मुझे नहीं लगता है कि एक दिन के लिए, थोड़ा बहुत लोग बोल रहे थे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पे इम्पैक्ट होगा, बट आई डोंट सी अ बिग इम्पैक्ट ओवरऑल, बिकॉज ये आया है, अभी बनना चालू होगा, पूरे इकोसिस्टम में स्प्रेड होगा, ड्यूटीज इतने हाई है, compete in the same range, many things. There is few people who would definitely buy, but I don't see it will impact. But the statement which it makes is that India is a market which no one can ignore. Same thing which we saw in 80s when Suzuki came. So I think it is a very, very good positive start and very big development for a country as a whole. So we believe this is a great step, and मुझे लगता है ये जो import duty भी अभी इसके ऊपर करीब 70% की लगी हुई है, वो भी government most probably they will have to trim it down, and in this tariff bill there is a high probability it can come. It would have definitely come, but there is some tussle between Musk and Trump, so may not be included in this list. But earlier it was very sure that Tesla will be not paying much, you will not be paying duty on Tesla cars. But अभी मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, because अभी उन दोनों का भी आपस में इतना जम नहीं रहा है. Let's see what happens. Next. Yeah. Good morning, everyone, and thank you for your time. So in 2025, technology is rapidly evolving, and every single day, the limits of what is possible is being pushed. Firstly, there have been some very interesting developments in the medtech space with Elon-backed Neuralink, which could have some huge implications. So firstly, control a phone with pure thought.
In July, a paralyzed volunteer used Neuralink's telepathy brain chip to move a cursor and open apps just by thinking. And the second step is restoring blind sight. So the FDA has okayed Neuralink's vision restoring implant called Blind Sight, and the first human surgery is targeted for late 2025. So these are huge pieces of information in the medtech space, and going forward, this can mean huge things for the specially abled. Next, all of us have been exposed to generative AI to some degree, and most of you are probably aware of what ChatGPT is. But agentic AI is the next step. If generative AI is the brain, then agentic AI is the body that springs into action. And before I go ahead with what this really means, here are some interesting developments in the world of agentic AI. So number one, we have Microsoft Copilot Studio Agent Builder. This helps you drag and drop tools and let anyone build an office bot that reads Outlook threads, drives into team chats, and spits out status reports or IT answers, no codes required. Why is this exciting? Because this is probably there on your laptop today. And this is something that you can try out to really understand what the power of agentic AI is. Then we have OpenAI also getting into this. And just yesterday, we had Agent GPT announced, which basically helps you automate any task on the web or on your PC. You just ask ChatGPT, do this for me, book my ticket, and it does it for you. And lastly, the Salesforce Agentforce update. So this is basically an autonomous service agent that is now live at 1,000+ firms in the US, and some leading firms are also using this technology. What it does is it knocks out routine support tickets, updates CRM entries, and cuts human workload by up to half. So this is a very big development on the sales side. And me personally, I have seen so many workflows where complete sales processes from the point of contact up until the deal closing, all of them are completely being done by AI. So yeah, this is huge news. And before we go ahead with how we use AI at Sovelo here, a short video we have made to show you what AI is capable of. So just to interrupt, this video which Aryaman is going to show you, this is completely made through a prompt which we have developed, and this video, nothing we have shooted, nothing, it is completely automatically made with only prompts. So आप देखेंगे ना, ये पूरा हमने agentic AI यूज करके ही बनाया है, और ये बहुत कम समय में बना है, और इसके लिए हमें कोई मैनुअल एफर्ट्स नहीं करने पड़े हैं. Yeah, Aryaman, go ahead. Agentic AI, autonomous, goal-driven intelligence. It thinks in objectives, not instructions. Plans, acts, and self-corrects on the fly. Scales insight 24/7, no coffee breaks. Turns complexity into clarity in seconds. Pure research, accelerated. So, ये मैं आपको थोड़ा कंटेक्स्ट देना चाहूंगा. ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमने प्रॉम्प्ट से बनाया है. मतलब ये वीडियो हमने कोई शूट नहीं किया, कहीं से कट पेस्ट कुछ भी नहीं किया. इट इज जस्ट बेस्ड ऑन कमांड, इट हैज बीन मेड. सो दिस इज द वे यू थिंग्स आर चेंजिंग. आप सोचो मूवी मेकिंग में क्या होने वाला फ्यूचर में जाके. Whether you will really need any character, you need any actor, actress, you can just buy their copyrights like what you are doing for advertisements. And आप कुछ भी बना सकते हो. You can have 10 Hindi movies, different expression of a same actors from which were the best ones, and you can bring all of them together and make a movie. तो आपको एक एक्ट्रेस की 10 मूवी में 10 पार्ट अच्छे लगे, 10 के 10 एक्सप्रेशन आप सिर्फ एजेंटिक AI यूज करके और क्लब करके और मूवी बना सकते हो विदाउट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द एक्ट्रेस. एंड यू कैन ऑब्वियसली ब्रिंग डाउन द कॉस्ट. आप उसको अगर उनको फिजिकली आके शूटिंग ही नहीं करना, देना ही नहीं, तो आप उनको बहुत कम पैसा भी दे सकते हो. So these are things which are developing, and wonderful things are happening. Due to time constraint, we can't show you, but I can tell you our efforts in research have gone down by 70-75% by use of agentic AI. Or you can say that we are working 70% more than earlier, and we are doing 70% more and better research, in-depth research on the same stocks which we were able to do earlier with the same workforce. So it is a very interesting thing, and we are really liking it. It is helping us to grow also faster. Yeah. So just a bit from me. So as you saw, AI has now reached frightening levels of capability, and this is proven by the 100% AI video you just saw. And today we are seeing AI completely transform how every industry works, from healthcare, law, retail, you name it. What's different now is that AI isn't just doing basic automation. It actually gets context and adapts to what you need.
The companies that will come out in this are not the ones that are just throwing AI at everything. They're being smart about where they're using it while keeping humans in charge of the big decisions. And we're pretty straightforward about how we use AI at Sovelo. It doesn't do our thinking for us. It just makes the way we think much faster. All the real analysis and investment calls are still us. AI handles the menial tasks, so we don't have to. Us analysts used to waste countless of hours on data entry, fixing spreadsheets, or hunting down filings across different websites, hours every day. Now that stuff takes minutes and it happens automatically. We are letting people focus on the work that actually matters. We have set up AI agents that can dig through mountains of data really quickly. Instead of manually going through 30 different PDF reports to find one number, our system can pull up exactly what we need in seconds. Earnings data, SEBI filings, macro trends, whatever it is. The best part is that it actually understands what you're asking for and not just matching keywords. All those standard client reports and investment summaries we send out, AI handles the first draft now. We're not just letting it run wild. Everything gets checked, edited, and make sure it meets our standards. It's a huge time saver without sacrificing quality. By cutting out all of the administrative busy work, we've basically flipped our time allocation. As Sir said, our analysts used to spend 60% of the day on operational tasks and only 40% on actual research. Now it's more like 80% research and 20% on everything else. That's not just more productive, it means better analysis, faster responses to market changes, and clearer strategic thinking. Thank you. That's all from my side. Yeah, Padma, move the slides faster. We are running out of time. So, yeah, most importantly, inflation. So, हमारा inflation consistently lower side पे surprise कर रहा है. And if you recollect, हमने 4 सेशन पहले से हम ये मेंटेन कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी हमको और सरप्राइज करेगा और जितना आरबीआई का टारगेट है उससे नीचे ही जाते जाएगा. उसका सिंपल रीजन है, हमारे सबसे बड़े जो डिसएडवांटेज थे क्रूड का, वो उसमें कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया. ऑल्दो in last 1 month we have seen some move upwards, but it is not very material. And उसके अलावा जितने भी अपने कोर कंपोनेंट्स है सीपीआई के, उन सब में गिरावट है. एंड आई थिंक थोड़ा बेनिफिट हमको बेस इफेक्ट का भी मिल रहा है लास्ट ईयर के वर्सेस में, बट स्टिल इन्फ्लेशन इज नॉट सरप्राइजिंग अस नेगेटिवली, इट इज सरप्राइजिंग अस पॉजिटिवली, एंड इट इज गिविंग मोर हेडरूम टू आरबीआई टू बी इन कंफर्ट जोन एंड ऑल्सो कट. ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आरबीआई ने एक बार एकोमोडेटिव स्टैंस विड्रॉ किया है एंड शायद बहुत जल्दी वापस आके एक रेट कट करेंगे, ऐसा बोल नहीं सकते. ऑल्दो जो अभी लास्ट इन्फ्लेशन डेटा है उसके बाद आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा है कि अगर डेटा और अच्छा आया तो वी विल गो विद डेटा, एंड हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हम एकोमोडेटिव नहीं होंगे. बट मुझे लगता है कि काफ़ी सारा रेट कट हो गया है. अभी बहुत ज़्यादा रेट कट की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब भी रेट कट होता तो एक नज़र फेड के ऊपर भी होती है. फेड कुछ भी ज़्यादा कर नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे अभी भी इन्फ्लेशन डेटा फेवरेबल नहीं आ रहा है. नेक्स्ट स्लाइड पद्मा. सो ये जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि रेट क्या होती है क्या नहीं होती है, आप देखिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. हम इसका इतना बड़ा तूफान बना के बैठे हैं टैरिफ का. हमारा गुड्स ट्रेड बैलेंस विथ यूएस इज जस्ट 0.69% ऑफ जीडीपी. अभी ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है या कोई बहुत छोटी कंपनी है, उसका मेजर रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, 400 करोड़ मार्केट कैप की, 1000 करोड़ मार्केट कैप की है, 200 करोड़ की कंपनी है, वहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली हो सकता है. बट ब्रॉडर वे में अगर आप देखो तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है. एंड जो दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था कि ये जितनी कंट्रीज का आप देख रहे हो, यूरोप, मेक्सिको, चाइना, जिनको भी उन्होंने दिया है, 20% से नीचे किसी को भी नहीं दिया है. तो मुझे नहीं लगता है कि हमको भी 20% से नीचे मिलने वाला है. ऑल्दो मार्केट में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है लोग कि 10% मिलेगा. आई एम रीजनेबली श्योर कि 10% नहीं मिलने वाला है. हम लोग 15 से 20 के बीच में रहेंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अस इन माई व्यू, एंड दैट विल टेक अवे द अनसर्टेनिटी एंड वी विल बी एबल टू डू फिनोमिनली वेल फ्रॉम देयर. नेक्स्ट स्लाइड पद्मा. ये मुझे आपको बहुत जरूरी दिखाना था कि बहुत सारे लोग चाइना से कंसिस्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं. आप देखिए चाइना ने अपनी इकोनॉमी को कैसा बिल्ड किया है, वो पूरी एक्सपोर्ट रिलायंट है. एंड ये आपको सबसे पहला जो चार्ट दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, कि उन्होंने अपने सरप्लसेस को $1 ट्रिलियन तक क्रॉस कर दिया है. बट उसके बावजूद भी डिफ्लेशन है वहाँ पे, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड रिवाइव ही नहीं हो रही डिस्पाइट
so many of multiple growth rate cuts and also stimulus which have been provided to different industries. And real estate market is at historic level, 15-year low. And despite monetary stimulus also, growth is not reviving. Next slide, Padma. Now if you see India में भी struggle तो है. हमारे corporates के capex slow हो गए हैं. जैसे ही प्रॉफिट कम होता है कॉर्पोरेट्स ने अपना कैपेक्स स्लो कर दिया है. एंड दूसरा उसके कारण हमारे फ्री कैश फ्लो ज्यादा दिख रहे हैं. एंड गवर्नमेंट ने भी टैक्स बॉयंसी जैसे ही कम होना चालू हुई है तो गवर्नमेंट ने भी स्पेंड कम कर दिया है. तो दोनों चीजें हमारे यहाँ पे भी चल रही है. गवर्नमेंट का कैपेक्स स्पेंड नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेट्स का कैपेक्स नहीं आ रहा है. कॉर्पोरेट्स का सारा फोकस आरओई पे और प्रॉफिटेबिलिटी और फ्री कैश फ्लो पे है. हमारे कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बहुत लो लिवरेज पे है, हिस्टोरिकली लो लिवरेज पे है. एक पॉइंट मैं सिर्फ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टच करना चाहूंगा. हमारी दुनिया में अगर आप ग्रोथ का देखेंगे तो आपको 3 चीजें होती है. या तो आप स्केल चूज कर लो ग्रोथ के लिए, या आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चूज कर लो. हमारी कंट्री ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चूज किया हुआ है और मैक्रो स्टेबिलिटी चूज किया हुआ है. सो 3 चीज में से आपको 2 ही मिल सकती है, विच पद्मा इज शोइंग. फर्स्ट इज मैक्रो स्टेबिलिटी, सेकंड इज आरओई, दैट मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्विटी, एंड थर्ड इज स्केल. हमारी कंट्री ने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमने जो मैक्रो स्टेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पे, उसके कारण शेयर मार्केट चलते जा रहा है पर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं आ रही है. हमारी सारी ग्रोथ सर्विसेज से आ रही है और एग्रीकल्चर अभी तक गिरा नहीं है, विच इज वेरी वेरी पेनफुल. ये अगर आप ये चार्ट देख पाएंगे लास्ट 5 साल में फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टेक जो हमारी कंट्री में बढ़ गया है और मैन्युफैक्चरिंग का स्टेक बिल्कुल नहीं बढ़ पाया है. एंड एग्रीकल्चर भी स्टेबल है 2008 के बाद से. नाउ व्हाट डज दैट मीन कि अगर एग्रीकल्चर स्टेबल रहेगा यानी कि आप हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट ही नहीं हो रहे हो, आप डायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में शिफ्ट हो रहे हो, यानी कि सब मार्केट में आ रहे हैं, इक्विटीज में आ रहे हैं. एंड उसका रीजन ये है कि वहां पे प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं. अगर आप BSE 500 वर्सेस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी देखोगे तो एम्प्लॉय सैलरीज भी देखोगे तो BSE 500 की प्रॉफिट्स बढ़ रही है बट कॉर्पोरेट सैलरीज नहीं बढ़ रही है. इसका मतलब ये है कि हम लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं जा रहा, और वो पैसा नहीं जा रहा तो टैक्स नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं कर रही है. एंड इसीलिए हम लोगों का जो ग्रोथ है दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन, दैट इज नॉट इवन सब्सटीट्यूटिंग एग्रीकल्चर विच शुड बी द साइन ऑफ डेवलप मार्केट और यू आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का, इसीलिए गवर्नमेंट PLI वगैरह कर रही है. मेरा मानना China Plus One विल हेल्प अस इन दैट इनिशिएटिव. हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है China Plus One एंड गवर्नमेंट के PLI स्कीम एंड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग से. द पॉइंट टू शो यू दिस स्लाइड इज टू वन वे टू लुक एट इट इज कि भाई हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको सिर्फ शेयर मार्केट चल रहा है, कंट्री में कुछ नहीं हो रहा. दूसरा वे ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है होने का, और वो हम लोग की गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स अगर आप ये देखेंगे आप सारे उसी डायरेक्शन में है. नेक्स्ट स्लाइड पद्मा. सो हाउ डू वी मैनेज अनसर्टेनिटी, और हम लोगों को पैसा कैसे बनाना. हमको पैसा इसी मार्केट में बनाना है. जो मार्केट टेलविंड 2022 कोविड के बाद मिला 22-23 का, वो हमेशा नहीं मिलता. वो डिकेड में 10 साल के पीरियड में 1-2 साल मिलता है जब सब चलता है. हमको सबसे बड़ा फायदा रिसर्च से ही हो सकता है और नीचे बॉटम अप आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे. आई पर्सनली विथ माई टीम स्ट्रांगली बिलीव कि लास्ट 2 साल मार्केट हमारे साथ बहुत इनजस्टिस कर रहा था, क्योंकि एक तरफा चले जा रहा था और हम जितना भी मेहनत कर रहे थे हमें भी उतना ही रिटर्न हम बना पा रहे थे, और दूसरे स्टॉक बिना रिसर्च के भी उतने ही रिटर्न बन रहे थे. पर अब जब मार्केट बॉटम अप पे आया है, मुझे पूरा यकीन है कि हम जो इतनी मेहनत करें, हमारी टीम जो इतना काम कर रही है, वी हैव द बेस्ट रिसर्च टीम इन द कंट्री. एंड वो रिसर्च टीम का जो एफर्ट है, जो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसका बेनिफिट अब हमें बहुत जोर से मिलने लगेगा और आपको दिखेगा हम कितने सब्सटैंशियली आउट परफॉर्म करेंगे. हालांकि लास्ट 14 मंथ्स भी हम टॉप 10 में रहे हैं कंसिस्टेंटली, ऑल्दो वी आर स्मॉल बट वी हैव मेंटेन्ड दैट परफॉर्मेंस, ऑल्सो मेंटेनिंग द बीटा. नेक्स्ट स्लाइड पद्मा. एंड दिस वैल्यूएशन गैप बिटवीन अर्निंग्स ग्रोथ, ये जो राइट का चार्ट था पद्मा, सॉरी यू हैव टू गो टू द बैक स्लाइड. या जो ये राइट हैंड साइड का चार्ट है, देयर इज अ वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ गैप. वैल्यूएशंस पिक हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है. बट आई थिंक इसमें धीरे धीरे हमारे जैसे गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं और साइक्लिकल इंडस्ट्री का जो रिवर्सल है, इससे आपको ग्रोथ वापस कैचअप होना चालू होगी. कैपिटल गुड्स में बहुत बड़ा मोमेंटम है. सारे कॉर्पोरेट्स कैपेक्स अनाउंस करना अब धीरे धीरे चालू कर रहे हैं. विद द रेट कट इट विल फर्दर बूस्ट, एंड दैट इज द रीजन RBI हैज आल्सो सेड दैट हमने अपफ्रंट किया रेट कट को भी और जोर से CRR कट किया है, सो दैट देयर इज मोर लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट एज वेल.
नेक्स्ट पद्मा। सो अभी हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 क्वार्टर थोड़ा पेन रहेगा बिकॉज निम कंप्रेशन होगा, एक बार रेट कट होता है तो सारा जो आपको देना है वो तो इमीडिएटली देना पड़ता है, पास ऑन करना पड़ता है, बट आपके कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है फाइनेंशियल वो इमीडिएटली रिप्राइस नहीं होते हैं, तो 2 क्वार्टर निम कंप्रेशन रहेगा, बट ओवर लॉन्ग टर्म डेलिक्वेंसीज कम हो जाएगी। सो नियर टर्म में एनबीएफसीज के नंबर थोड़े अच्छे आएंगे। Then again, large banks will pick up and PSU banks will be the biggest beneficiary in my view. Last time भी हमने capital goods पे आपको हमारे विचार बताए थे. I think capital goods is one sector where there will be huge growth for next 5 to 10 years because any industry which has to grow will have to spend on capex, and capital goods industry is the one where the growth could be very, very substantial, and profit margins because of operating leverage nature of the business margins could be much higher. थर्ड हमने जो सेक्टर अभी इंक्लूड किया जो पहले नहीं था वो फार्मा है। हमें फार्मा में कुछ पॉकेट्स अभी मिल रहे हैं जहां पे हमें लग रहा है बहुत अच्छा डेल्टा बन सकता है। सीडीएमओ इज ए स्पेस जो आप लोग को सबको मालूम है, बट सीडीएमओ में जो मार्केट लीडर्स डिविस लैब है या लॉरस है या जो और 2-3 प्लेयर है वो बहुत महंगे हैं, वो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हम एक मेंटली एक वैल्यू बेस्ड फंड है। बट वी हैव फाउंड आउट समथिंग न्यू इन दैट स्पेस विच इज super which is very good and is also very cheap. We will discuss that in the next slide. So हमारा लास्ट टाइम भी हमने लैंडमार्क कार्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और इन्वायरो किया था। लैंडमार्क कार्स में हमारी थीसिस सेम है कि इसका सर्विसेज रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो होगा विद पर कैपिटा इनकम गोइंग अप, दैट विल फर्दर इंक्रीज, एंड इसकी जो मार्जिन है वो आज रुके हुए बिकॉज ऑफ न्यू वर्कशॉप विच दे हैव ओपनड आफ्टर द आईपीओ एंड न्यू शोरूम्स, वहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज होना चालू होगा। This business globally is 2.5-3% PAT margin business. Right now, Landmark is at 0.4%. तो 0.4 का 2.5% अगले 5 साल में आने ही वाला है, तो 5 गुना आपका पैट वहां से होता है, प्लस आपकी ग्रोथ जो 15 से 16% की मिनिमम होगी दोनों बिजनेस का कंसोल करके भी, सर्विसेज एंड कार सेल्स का, दैट विल बी अनदर डेल्टा। सो आई बिलीव दैट दिस स्टॉक कुड बी वेरी वेरी बिग वैल्यू क्रिएटर इन नेक्स्ट 5 to 7 years. इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था and it has done quite well since then, and we believe that the promoters are super good, and जो ये स्पेस में काम कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, दिस इज अ वेरी niche space in where there is high demand and there is very low competition in this space, and this company will continue to surprise positively. मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमने पर्सनली इनके साथ बहुत काम किया था जब इनका प्री आईपीओ स्टेज था। हमने जो 2 नए आइडियाज आपको फार्मा में बताए, पहला डॉक्टर रेड्डी। नाउ ये नाम जो है इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा ये तो कहीं गया ही नहीं स्टॉक, एंड मैं ये आपको यकीन के साथ नहीं बोल सकता कि 6 महीने में परफॉर्म करेगा कि नहीं, पर हम टाइम नहीं कर सकते, बट ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका आज के दिन 5500 करोड़ 6000 करोड़ के बीच का पैड बन रहा है, और ये 15, 16, 17 टाइम पे अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क एक ही है, और जो मतलब नॉन रिस्क है, इसका एक एंटी कैंसर ड्रग है रेवलिमिड, जो 2026 में जिसका पैटेंट खत्म हो रहा है। आज के दिन 6 फार्मा ग्लोबल फार्मा कंपनीज ये प्रोडक्ट बनाती है, 12 बिलियन का मार्केट है जो सबके बीच में डिवाइडेड है, और सब जोर से पैसा बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट हो जाएगा जनवरी 26 से, उसके बाद ये इसके जेनरिक वर्जन आ जाएंगे जो बहुत लो मार्जिन पे बिकेंगे और रेवेन्यूज बहुत जोर से गिरेंगे। इसीलिए इस कंपनी को इतने सस्ते लेवल पे भी कोई ले नहीं रहा है। बट कंपनी ने 2 चीजें बोली है, एक उन्होंने बोला है कि उनका मार्जिन रेवलिमिट जाने के बाद भी 27% होगा, आज के दिन 28.29% है। नाउ 27% एबिटा मार्जिन का गाइडेंस आफ्टर रेवलिमिट गोइंग मींस रेवलिमिट इज नॉट वेरी मटेरियल अमाउंट टुडे। लोगों का मानना है, देयर आर डिफरेंट एस्टिमेट्स, people are saying Revlimid is 15% of Dr. Reddy's revenue, some people are saying till 40% it is there। तो एक्चुअल नंबर कंपनी शेयर नहीं कर रही, ग्लोबल मार्केट का नंबर मिलता है बट कंपनी वाइज नंबर नहीं मिलता है, सो वी डोंट नो व्हाट इज द रियल साइज। बट मेरा मानना है कि 27% गाइडेंस अगर कंपनी दे रही है तो इसका कंट्रीब्यूशन 15-20% के बीच में होगा, और अगर वैसा होता है तो ये कंपनी 5500 करोड़ का पैट 2027 में करेगी, और अगर 5500 करोड़ का पैट करे 16 टाइम पे एक फार्मा कंपनी मिलना बहुत मुश्किल है ऑफ दैट क्वालिटी। सेकेंडली, इसने पिछले 3 साल से और अगले 2 साल 1000 करोड़ का R&D करने वाली है, तो 5000 करोड़ का R&D करने वाली कंपनी के पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट नहीं होगा रिप्लेस करने के लिए, इज अनबिलीवेबल। सो आई थिंक दिस इज अ आइडिया विच कैन अंडर परफॉर्म फॉर 6 months, but when it starts moving it will move very very fast, just the way we saw Glenmark Pharma। दूसरा एक आइडिया है हमारा जो सीक्वेंट साइंटिफिक, ये न्यू आइडिया जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये एट प्रेजेंट तो वेटनरी में है, एनिमल मेडिसिन में है, एनिमल न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन में,
पर इसका जो ओनर है कार्लाइल ग्रुप प्राइवेट इक्विटी, उसी ने दूसरी एक कंपनी भी उसके पास है, वियास लाइफ साइंसेस, और इनका स्वैप रेशियो भी डिसाइड हो चुका है, 56 शेयर्स ऑफ सीक्वेंट साइंटिफिक फॉर 100 शेयर्स ऑफ वियास। बट उसमें गेम ये है कि वियास के पास सीडीएमओ की 4 अप्रूव्ड फैसिलिटीज है, एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटीज है, जिसमें आज के दिन यूटिलाइजेशन लेवल 10% है, और इनका मर्जर होने वाला है। तो मेरे को लगता है सीडीएमओ खेलने का इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं है एट दिस प्राइस। आज के दिन जिस लेवल पे ये मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है, I think it can easily become 4 to 5x in next 4 to 5 years. And once this merger happens and people come to know that they are able to use the CDMO facility, which is underutilized right now, I think we will see huge revenue, huge alpha from this stock as well. But ये long term की stories है, हम कोई short term stocks नहीं लेते हैं. Next, Padma. So this is all from us, and now we will open up the floor for the questions. Arvind ji, please tell us the questions, and we will try to answer all of them. Yes, so we will begin. We have received a few questions. So the first question, Sandeep, you can answer is, what's the view about the market going forward this year and for the next 2 to 3 years? And considering that, what is the Sovilo, what the Sovilo is focusing on in the next 2 to 3 years? So अगर आप देखेंगे, हम पहले से बोल रहे हैं कि इजी मनी इज बिहाइंड, जो 22 कोविड के बाद 1-2 साल का पीरियड मिला था वो खत्म हो गया है। अभी आरबीआई का रेट कट वगैरह सब कुछ आ गया है। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वही अच्छा करेंगे। इसीलिए हमारा सारा फोकस बॉटम अप रिसर्च पे है। मुझे लगता है, हालांकि हमने लास्ट 2 साल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अगर आप देखेंगे 26% का CAGR है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल हम बहुत बेहतर करेंगे, मार्केट से विल सब्सटेंशियली आउट परफॉर्म, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो आप काम में आएगा, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दैट। आई बिलीव दैट मार्केट विल ऑलवेज मेक मनी। वी हैव सीन देयर विल बी ऑलवेज 100 to 200 स्टॉक्स व्हिच विल कंटिन्यू टू गिव सुपर परफॉर्मेंस डिस्पाइट बैड मार्केट्स। तो अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल भी रहता है, हालांकि मेरा व्यू मार्केट पे बहुत बुलिश है, क्योंकि एफआई मनी को आना ही पड़ेगा, और वो 1-2 महीने 3 महीने बाद कब आती है आई कांट से, बट ऑलरेडी स्टॉप तो हो गया जाना, और थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है। मुझे लगता है और स्पीड में आएगा। जब वो आएगा तो वी विल आल्सो गेट दैट बेनिफिट। बट इवन इफ दैट डजंट कम, आवर बॉटम अप रिसर्च will help us to achieve very substantial return going forward. We'll beat the markets very, very comfortably and in a very significant way. That is our aspiration. What's the one big risk you are seeing in the next 3 months to midterm? See, the only big risk which I see is very unsystematic, जिसका हम कोई solution नहीं कर सकते। अभी कोई भी कंट्री कभी भी उठ के कुछ भी कर देती है। हमने पहलगाम अटैक देखा, उसके कारण हमारे 15-20 दिन 25 दिन खराब हो गए। ऐसा कुछ भी हो सकता है। वी आर सराउंडेड बाई वेरी रॉक्ड नेबर, दैट इज नोन फैक्ट। एंड वैसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट का फोकस फिर से चेंज हो जाता है, फिर से जो स्टेबल स्टेट ग्रोथ है वो सब चेंज हो जाता है। उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, वहाँ पे कुछ बड़ा हो जाता है, या किसी इसराइल का कुछ बड़ा हो जाता है, उसके कारण सप्लाई चेंज कर जाती है, ये सब तो होगा। बट मैं आपको बोलता हूँ, आप लास्ट 20 साल में रिटर्न्स देख लीजिए, दुनिया में सब कुछ देख लिया एक्सेप्ट न्यूक्लियर वार, उसके बाद भी हम लोग वर्ल्ड मार्केट्स ने भी रिटर्न अच्छे दिए और हमारे मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिया। तो ओनली वे टू मेक मनी इन द मार्केट इज टू बी इन्वेस्टेड एंड नॉट टाइम इट। मेरे अगर डेटा है, अगली बार हम वो स्लाइड इंक्लूड करेंगे। मार्केट्स में पिछले 50 साल में शायद सिर्फ 50 दिन में सारा पैसा बना है। तो now you have to imagine how can you be so lucky to find that one day when the returns will be made. It's very difficult. So someone is saying that it's great to hear about the AI application in research supporting investment decisions. So how do Sovilo rate itself to other PMS and AIF investment space? How do Sovilo rate itself compared to other AIF and PMS space? See, professionally, we don't want to comment on anyone, but I can tell you that we are young, we are small, we are agile, and we have very forward-looking thought process on the technology side. And one data point which I would request everyone to do check is that what is the research talent to total talent and as a percentage of AUM. I am reasonably confident we will be the number 1 in the country. तो हम रॉ मटेरियल पे खर्चा कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल अच्छा डाल रहे हैं, भगवान चाहेगा तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। So overall market valuations are very expensive and earnings reported in this quarter have been very weak. So what are the significant downgrade risk and valuation de-rating risk? See, मार्केट एक्सपेंसिव है, ये नॉन फैक्टर, लेकिन मार्केट एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ के सामने एक्सपेंसिव है, राइट। तो अभी मार्केट को अपने को कैसा देखना चाहिए कि मार्केट में एक FMCG सेक्टर का वेट है जो 5-6% से ग्रोथ 80 के मल्टीपल पे है।
एक IT सेक्टर है जिसमें 5-6% का ग्रोथ है, 30-40 के मल्टीपल पे ट्रेड होता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिनका वेट है और उनका ग्रोथ बहुत स्लो है, बट बिकॉज उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, उसलिए लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े फंड्स लेते हैं। तो उसके कारण मुझे लगता है कि जो निफ्टी का मार्केट का सो सिंपल एंड वैल्यूएशन देखते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। एंड इसीलिए बॉटम अप रिसर्च काम है कि आपको पेग रेशियोज देखने, मेरे ख्याल से दैट इज प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो हम पेग रेशियो पे बहुत फोकस करते हैं। वी जनरली ट्राई टू बाई मैक्सिमम अप टू 1.5 पेग रेशियो। इसका मतलब अगर कंपनी 20% से ग्रोथ हो रही है तो हम मैक्सिमम 30 टाइम का मल्टीपल देने को रेडी है। एक्चुअली में उतना भी नहीं देते हैं, हम वो लेते ही नहीं है इतने महंगे स्टॉक्स। तो आपको वो देखना है। निफ्टी कहाँ है वो बहुत मुश्किल है बोलना, उसमें कुछ स्टॉक्स होंगे जिनमें कोई ग्रोथ नहीं है फिर भी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट कुड भी देयर ओएमसी कंपनीज आल्सो जिनके मल्टीपल बहुत कम है, पीएसयूज है जिनके मल्टीपल बहुत कम है। बट अगर आप वेट देखोगे तो जो स्टॉक्स के में ग्रोथ कम है और मल्टीपल बहुत हाई है, उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है देन द ऑपोजिट। उसीलिए निफ्टी का वैल्यूएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना इज नॉट फेयर इन माय व्यू। So, Sandeep ji, as you mentioned that the impact of US tariffs on India may not be significant, but what are the top sectors which can be impacted due to the tariffs? सी अगेन वो टैरिफ किस पे आती है उस पे पता चलेगा। बट ये जैसे अभी फार्मा को थ्रेटन करते रहते हैं, तो एक फार्मा पे एक झटका आएगा पक्का, मुझे लगता है जिस दिन वो कुछ भी अपसेट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो वो हो सकता है। ऑटो एंक्स में अपना एक्सपोजर अच्छा खासा रहता है यूएस में, बट वो जब आएगा तभी पता चलेगा। और मैं आपको फिर से कहूंगा कि हमने अपने पूरे पोर्टफोलियो को स्कैन किया एंड वी कैन शेयर दैट विद द ऑडियंस आल्सो सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट हम कैसा करते हैं कि हम हर कंपनी का एक्सपोर्ट का डेटा कंट्री वाइज निकालते हैं और देखते हैं। इसके सबके लिए हमारे पास एआई टूल्स हैं। तो वो उसमें हमने देखा है कहीं भी हमारा ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसका कोई ऐसा एक्सपोजर है कि उससे टैरिफ का कोई फर्क पड़ने वाला है। हमारे पास बहुत बड़ा, राइट पद्मा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes, that's correct. And also, in fact, we have some stocks which will be benefiting from this whole tariff tussle. So, for example, textiles as a space, we see that, like so far, Bangladesh, Vietnam, these are all major textile hubs. Now, the expectation is that if we like going by Liberation Day, April 2nd announcement of the tariffs on various countries, there's an expectation that India will be getting a lower rate than all these competitors, so that will benefit most of our textile stocks. टेक्सटाइल कंपनीज की मैनेजमेंट भी रिपीटेडली आके यही बोल रही है, सभी एनालिस्ट जिनके साथ हम बात करते हैं वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि इंडियन टेक्सटाइल्स हैव अ ह्यूज लेग रूम टू ग्रो नाउ गिवन दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन द टैरिफ्स। एक क्वेश्चन अरविंद जी सेगमेंट सेक्टर पे भी था, तो आई वांट टू टेक दैट क्वेश्चन। सो सबसे मुझे लगता है इंडिया में जो बेस्ट सेक्टर होगा वो पावर सेक्टर होगा। अभी आपको उसको खेलना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, बट पावर सेक्टर इसलिए बेस्ट होगा बिकॉज आज के दिन जो चैलेंज है ना, आरई भी हमने बहुत कर लिया। अभी आज के दिन अपना 230 गीगावाट का कंजम्पशन है एंड 320 तक वो डिमांड जाने वाली है। एवरी ईयर 6-7%, 0.8% ऑफ जीडीपी अभी अपना ग्रोथ रेट है पावर का। तो 320 गीगावाट लगने वाला है। 80 गीगावाट जो अभी एडिशनल है वो मोस्टली मुझे लगता है थर्मल में आएगा वापस। आरई तो कर ही रहे हैं जितना कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि दिन में पावर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम इवनिंग में है जब पीक आवर्स आते हैं और उस टाइम स्टोरेज नहीं है। सो वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग फॉर स्टोरेज ऑफ पावर, दैट इज वन चैलेंज। I don't know when solution will come. Even the Tesla solution which has come is not very appropriate. Still very unfeasible because of cost point of view. तो मुझे लगता है बैटरी स्टोरेज, तो उसमें एक कंपनी है एसपीएमएल इंफ्रा जो क्लेम करती है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। एक और कंपनी है काबरा एक्सट्रूशन, मतलब हमारे पास ये सब नहीं है, बट ये लोग दावा करते हैं कि वो बैटरी स्टोरेज में है। बट हम लोग बेटर प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, जैसे हमारा राजा बैटरी है वो बहुत अच्छा, हमें पूरा यकीन है कि वो डेफिनेटली अच्छा काम करेगी स्पेस में। तो आप पावर में जो स्टोर कर पाएगा वो गेम चेंजिंग होगा। दूसरा पावर एंसिलरी, सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो एंसिलरी में ट्रांसफार्मर और केबल्स एंड वायर्स। उसमें ट्रांसफार्मर में मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई स्पेस है जहाँ पे सस्ता कुछ मिल रहा है, बहुत महंगे हो गए स्टॉक्स। बट केबल एंड वायर में बहुत सारे स्पेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा अभी भी बन सकता है। दे आर डैम चीप एंड द ग्रोथ विल बी फिनोमिनल। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, अभी अपना जो कैपेक्स अनाउंस हुआ है 10,500 करोड़ का केबल एंड वायर का कैपेक्स अनाउंस है। मोटा मोटा 4.5 टाइम्स का फिक्स एसेट टर्नओवर होता है। तो 45,000 करोड़ का केबल एंड वायर का कैपेसिटी नया 28 में आ रहा है, और अभी जो अपना एवरी ईयर का ग्रोथ है वो 8 से 9% का है। तो हमको 40-41 हजार करोड़ का केबल एंड वायर FY 28 में चाहिएगा जब हमारी कैपेसिटी 45,000 करोड़ की होगी।
तो सिर्फ 4-5 हजार करोड़ का ओवर सप्लाई है विच विल बी एब्जॉर्ब, बिकॉज अब उसमें एजम्पशन ये है कि सारी टाइम पे आ जाएगी, जो नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये एक स्पेस है जहाँ पे 4-5 साल क्लियर ग्रोथ पाथ है। अभी जो बड़े फंड्स हैं पॉलीकैप KEI खेल रहे हैं, हम छोटे फंड्स हैं, हम लोग दूसरे नामों पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है केबल, वायर, बैटरी स्टोरेज, डायरेक्ट जनरेटर्स लाइक टाटा पावर, NTPC, ये बहुत अच्छा करेंगे। सेकंड, हमको जो सबसे अच्छा लगता है वेस्ट ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, तो इसके लिए हम EMS और इन्वायरो खेल रहे हैं, लेकिन EMS के मैनेजमेंट का बहुत इधर उधर होते रहता है मिसेस, तो इसलिए इन्वायरो इज वन मैनेजमेंट विच इज वेरी सुपर क्वालिटी, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, वहां से हम खेल रहे हैं। कैपिटल गुड्स तो हमारा फेवरेट है ही, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स है कैपिटल गुड्स में। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स इज वन सेक्टर विच इफ इंडियन इकोनॉमी इज रियली गोइंग टू ग्रो, नाउ द ग्रोथ हैज टू कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज इज ग्रोथ विल डेसिलरेट। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा तो कैपेक्स बहुत होगा, कैपेक्स होगा तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इज द बेस्ट। हम इंजन ऑयल भी खेल रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल ऑयल है वो खेल रहे हैं, हम क्रेन्स भी प्ले कर रहे हैं, हम सब कुछ प्ले कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ नहीं छोड़ा उस स्पेस में, एंड बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट द रिटर्न्स विल इंप्रूव सब्सटेंशियली वंस प्राइवेट कैपेक्स पिक्स अप। पाइप्स खेल रहे हैं, पाइप्स में हमें हालांकि जो हमें खेलना है वो हम नहीं खेल पा रहे हैं, बट देयर आर प्लेस विच वी आर डूइंग। देन द थर्ड सेक्टर विच we are very bullish is pharma. In pharma we will play CDMO में जो नॉन प्लेयर है डिवीज एंड लॉरस वो बहुत महंगे हैं, वो नहीं खेलेंगे, पर हम सीक्वेंस साइंटिफिक की तरफ से CDMO खेलना चाहेंगे, डॉक्टर रेड्डी खेलना चाहेंगे। मुझे लगता है औरोबिंदो शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल प्ले, दीज आर वेरी गुड नेम्स। औरोबिंदो इज नॉट इन CDMO, बट अगेन यू नो वो कंपनी का पैट 7500 करोड़ हो जाएगा, 65,000 करोड़ पे है। उसका एक फैसिलिटी है काकीनाडा जो बहुत टाइम से लटका हुआ है, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो मेन स्ट्रीम आ जाएगा। जैसे ही वो आएगा तो वो स्टॉक भी बहुत अच्छे से चलेगा। वहां पे थोड़ा चंद्रबाबू नायडू के साथ किटपिट चल रहा है, बट आई थिंक दैट विल आल्सो बी सॉल्व। तो मुझे लगता है कि ये भी एक स्टॉक है जहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे अभी लगता है कि जो फंड्स आज के दिन FMCG और IT में डिप्लॉय कर रहे हैं, हम वो प्रोपोर्शन थोड़ा फार्मा में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा और सस्ते हैं स्टॉक्स। तो दैट इज द वे वी प्ले। Sandeep, we'll have last two questions considering the timelines. So one is about the Jane Street, as we saw and we spoke also about the SEBI's crackdown on the Jane Street platforms. So whether there are any other firms, similar firms with similar values or volumes, which SEBI could take actions. मिलेनियम करके है जो सिमिलर करता है, बहुत सारे हेज फंड है, बट मुझे आई ऑनेस्टली डोंट थिंक दैट यू कैन लॉजिकली स्टॉप देम अनलेस देयर इज अ रॉन्ग डूइंग which you can which we are not aware. Unless there is a wrongdoing, what is known till now is a strategy. Now your market is illiquid and someone is putting bigger capital to make money out of it. I don't know how sustainable it is, because then everything will go to the international courts also at some point of time, so it will be tough to defend that. Okay. So last question. With inflation at 6-year low, don't you feel and everyone is being too optimistic here? But which are the, sorry, I just missed the question. So with inflation at 6-year low, don't you feel everyone is being too optimistic here? Any supply shock can cause huge spike in inflation rates and thus force central banks to hike rates. So very good question, and ये हो ही सकता है, तो इसका कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते मन में, बट आई विल टेल यू, देखिए हम कैसा देखते हैं कि क्रूड जो है ना वो स्ट्रक्चरल डाउनटर्न में है। मुझे नहीं लगता क्रूड अगले 15-20 साल में भी रिवाइव होगा। क्रूड स्लो डेथ हो जाएगा क्रूड का यहाँ से, जो हमारे लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट हमेशा से रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रेजेंस बढ़ते जा रहा है। और अभी आज से 30 साल पहले क्रूड लेने के लिए अमेरिका ने ईरान इराक वार करवाया, और आज क्रूड बेचने के लिए ट्रंप झगड़ा कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो पीपल, सऊदी पहले हर 15 दिन से ओपेक की मीटिंग बुलाता था, सप्लाई कट करके प्राइस बढ़ाने की कोशिश करता, अभी वो भी बंद कर दिया। उसको भी पता जितना तेल निकाल के बेच दो और उसके बदले में इंडस्ट्री खड़ा कर लो, दैट विल बी बेस्ट थिंग टू डू। तो मुझे लगता है क्रूड इज ऑन ए स्ट्रक्चरल डाउनटर्न। आई डोंट सी क्रूड कमिंग एंड हर्टिंग अस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ऑन आवर इन्फ्लेशन। वो रिस्क कम हो गया। दूसरा, एक जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो हम लोग नहीं देख रहे हैं, कि हमारा जो इन्फ्लेशन हमेशा से आता है उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट अदर देन क्रूड जो होता है वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, इनका होता है। और इसका रीजन ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ग्रोथ कम है, इसका रीजन ये हमेशा रहा है कि हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। और अगर आप देखेंगे इतना स्टोरेज फैसिलिटीज बिल्ड हो रहा है इंडिया में, so slowly the wastage which is there, that will start going down. Obviously the priority will be on the expensive crops and expensive things, but slowly मुझे लगता है जिस तरह से डेवलप हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
एंड ये जो आपका DFT बना है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो अदानी ने बनाया है, ये सब बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विल बी फास्टर, इट हैज ऑलरेडी इंप्रूव सब्सटेंशियली। तो वेस्टेज कम होगा, जैसे जैसे वेस्टेज कम होगा उसका एक नेचुरल बेनिफिट इन्फ्लेशन पे आते जाएगा। सो स्ट्रक्चरली दिस विल ऑल्सो हेल्प इन्फ्लेशन टू बी कंटेन। थर्ड, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दे देता हूँ। इस साल का जो स्विंग सीजन का अभी तक का डेटा आया है उसमें पल्सेस में सबसे ज्यादा स्विंग हुआ है और सेंट्रल इंडिया में सबसे अच्छी रेनफॉल हुई है। तो मुझे लगता है जो अपने को दाल दलियन जो अपने को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं वो इस बार कंटेंड है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी जोर से वापस आएगा। हालांकि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना कुछ भी हो सकता है, वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, बट आई डोंट सी अ बिग रिस्क फ्रॉम देयर। So if that was the last question, I will try to finish with ending remarks. Is that fine, Arvindji, or is there some more questions? No, we can finish. So I will only request everyone, first of all, I will again thank you one to come on a Saturday and listen to our boring speeches. But I would say, I would like to, say this thing that we have a very energetic, young and very, very talented team. The people which are there in our team are very, very meticulous, academically one of the best in the country. And the ratio of our research to the AUM is most probably number 1 in the country in my view. I may be wrong, but to the best of my knowledge, we are at number 1. We are doing phenomenal hard work. Our team works huge number of hours daily. We try to find out huge amount of delta for our investors. The focus is only to create value and money for the investors. We can't say that last 2 years have been great to us compared to the efforts we have put. Yes, it has been great from performance perspective, but not the kind of performance we expected with the kind of effort we have put in, because market has been kind to everyone. So we have also got the same rationing of returns which everyone has got. But next 2-3 years, I think market will be bottom up. मार्केट में वही सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा जिसका रॉ मटेरियल की रिसर्च अच्छा होगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे रिसर्च में हम बहुत एफर्ट, मेहनत, पैसा सब डाल रहे हैं और उसका बेनिफिट हमको जरूर देखने को मिलेगा। विद दैट आई विल टेक योर लीव एंड थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन अ सैटरडे एंड अटेंडिंग आवर वेबिनार। Thank you, everyone. Thank you, everyone.